Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 12, that is about heavenly bodies including comets, asteroids and meteors. The SLO that we are going to cover in this lecture is to describe the characteristics of three heavenly bodies that are mentioned here, and further we account for the significance of Halley's comet across the world in terms of its visibility with naked eye and its 75-year orbital period. तो अपने इन दो SLOs को हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे. Dear students, further we proceed the lecture with the help of few questions in order to brainstorm few ideas. Quickly answer me that you ever seen a shooting star. What do you think it might actually be? Very good. And what do you know about the objects in space that are smaller than the planets? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया था. तो हमारे पास बिसाइड सन, planets or moons, there are some other celestial bodies or heavenly bodies that are present in the solar system. These includes comets, asteroids and meteorites. In this lecture we will discuss the unique characteristics of each heavenly body. So let's start the lesson with the first one, that are comets. So dear students, comets are basically the icy heavenly bodies that orbit around the sun in a very large elliptical orbit. Further, they start orbiting from the edge of the solar system and pass closer to the sun. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो it consists of a small solid core that is named as nucleus. फर्दर इसी न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास एक डस्ट और गैस का क्लाउड मौजूद होता है, that is known as coma. And when this comet gets closer to the sun, it releases a stream of dust and gas, and this stream of dust and gas is known as dust tail. उसके अलावा हमारे पास है iron tail, which is basically made of plasma, and it is due to the influence of solar wind. So these are the basic three parts of comet. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड हेवनली बॉडी की तरफ, दैट आर एस्टेरॉइड्स. दीज आर द स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन. दे आर टू स्मॉल टू बी नोन एज प्लैनेट. अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास मार्स और जुपिटर के दरमियान में पाए जाने वाले एस्टेरॉइड बेल्ट्स में मौजूद होते हैं. और अगर इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार्स दैट डिडंट फॉर्म प्लैनेट्स. फर्दर they vary in sizes and shape. अगर एस्टेरॉइड बेल्ट्स में हम इनकी साइज एस्टेरॉइड बेल्ट्स में इनके प्रेजेंस की बात करें तो हमारे पास 4 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं that make 1/2 of the total mass of the बेल्ट, और यहाँ पे आपको उनके नाम दिए गए हैं और यही हमारे पास 1/2 पर मुश्तमिल होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मीटियोराइट. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रॉकी या मेटालिक बॉडी है जो कि सन के गिर्द ऑर्बिट करती है. फर्दर जब ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में शामिल एंटर होती है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इट इग्नाइट्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द बर्निंग मीटियोराइट इज नोन एज मीटियोर और मीटियोराइट, या फिर हम इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं. एंड इट इज़ विजिबल एज अ फास्ट मूविंग ट्रेल ऑफ लाइट इन द स्काई एज यू कैन सी इन द गिवन वीडियो. फर्दर हमारे पास जो है दैट इन द लास्ट वी विल डिस्कस हेलिस कॉमेट. The orbit of this comet is computed by an English astronomer named Edmund Halley, और इसका नाम भी इसी साइंटिस्ट पर पड़ा है, इसकी वजह से हम उसे नाम देते हैं हेले कमेट का. याद रखिए कि ये हमारे पास एक शॉर्ट पीरियड कमेट है दैट कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट इन 74 to 79 ईयर्स, और हम इसको टेलीस्कोप के बगैर देख सकते हैं बआसानी नेकेड आई के जरिए. लास्ट हमने जो इसकी अपीयरेंस इसकी हुई थी दैट वाज in 1986 and it appears as a bright long-haired star. आप इसके आगे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 76 ईयर्स के बाद जितना हमारे पास वो ईयर बनेगा उसमें आप इजीली इस कॉमेट को विजिबल देख सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्केल शीट की तरफ, दैट इज 12.6 in which we differentiate between asteroids, meteorites and comets. Again, you can get access to this skill sheet by clicking on the link that is given in the description of this video. So dear students, here's the skill sheet. Quickly pause the video for a few minutes and solve this skill sheet. Very good. Now next move towards the worksheet. The link of this is also given in the description of this video. यहाँ पे आपको कुछ statements दी गई हैं, कुछ characteristics दी गई हैं. अभी हमने इन तीनों characteristics के बारे में डिस्कस किया. आप इनको रीड आउट कीजिए और यहाँ पे करेक्ट कॉलम के नीचे आप उनको लिखिएगा और उनकी पिक्चर्स को भी मैच कीजिएगा.
वेरी गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. दैट्स द होमवर्क. आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा. आपकी टीचर आपकी इन तीनों हेवनली बॉडीज के करेक्टर्स को एक स्ट्रिप्स की फॉर्म में लिखकर क्लास के अंदर रखेंगी और 3 सेपरेट बॉक्सेस आप बनाएंगे जिसके अंदर जिस पर मेंशन होगा कि 1 इज फॉर एस्टेरॉयड, 1 इज फॉर मीटेरॉयड एंड द अदर इज फॉर कमेट. आप करेक्ट स्ट्रिप को देखेंगे और जिस बॉक्स के साथ वो करेक्टर मैच करेगा आप उस स्ट्रिप को उस बॉक्स के अंदर डाल देंगे. तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट today's lesson. So इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे that are basically about the satellites. So dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.